ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है बिहार में आयोजित 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स पर रिपोर्ट। This is Akashvani. We now bring you today's highlights of the 7th Khelo India Youth Games being held in Bihar. सातवीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आज 36 स्वर्ण पदक दांव पर थे। आज भी पदक तालिका में प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र का कब्जा रहा। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार में आज खेले गए प्रतिस्पर्धाओं पर आधारित इस कार्यक्रम में मैं राजश्री त्रिवेदी। नमस्कार। पटना के मरीन ड्राइव पर आज साइकिलिंग रोड की प्रतियोगिता थी। किसने तेज पेडल कर स्वर्ण लपक लिया, बता रहे हैं मुआमार। This morning, the road cycling competition kicked off in style at the scenic JP Ganga Path with the individual time trial race setting the pace. And it was Rajasthan that stole the spotlight, sweeping both the boys and girls gold medals in a dominant display of speed and stamina. In the boys category, Rajasthan delivered a remarkable 1-2-3 finish, clinching gold, silver and bronze, an extraordinary clean sweep that left the spectators and competitors in awe. The gold medal winner, Ramavatar Chimpa, said, मेरी मेहनत तो मैं पहले इस पटियाला में ट्रेनिंग करता हूँ। पहले मैं नोखा में मैं सावराम जी का वहाँ पर ट्रेनिंग करता था। फिर वहाँ नेशनल मेडल है, मैं गवर पटियाला है ना इसमें वहाँ सिलेक्शन में वहाँ पर ट्रेनिंग करता हूँ। Silver medalist Mahadev Saran. मेरे कोच ने अच्छी ट्रेनिंग कराई, मेरा सपोर्ट किया। मेरे पास इक्विपमेंट और नहीं होता है, फिर भी मेरे कोच अवेलेबल कराते हैं मेरे लिए इक्विपमेंट। उनकी वजह से ये मेरे मेडल आया। And the bronze went to Mahavir Saran. काफी अच्छा लग रहा है मेरे को ब्रॉन्ज मेडल लेके। Meanwhile, in the girls' event, Rajasthan pedaled to victory yet again. Manju Chaudhary securing the gold medal with a commanding lead. मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा ये पहला गोल्ड है। Jui Gajanan Narkar of Maharashtra won the silver. मैं सेकंड आई हूँ तो इतना खुश नहीं हूँ, पहले भी सिल्वर ही आया था। And Rukmani, also from Rajasthan, won the bronze. According to the Rajasthan coach, it was the athletes' hard work that made the victory possible. Myself, Saran Kumar Bambu. हमारे जो खिलाड़ी हैं राजस्थान के वो सभी रेगुलर ट्रेनिंग करते हैं, तो ये बच्चों की मेहनत और उनकी कड़ी लगन और गार्जियन का जो है ध्यान, ये सभी उनको सराहा जाता है। ये उसकी वजह से ये अच्छा रिजल्ट रहा है। गया के IIM ग्राउंड में कलरीपायट में आज 3 स्वर्ण पदकों का फैसला होना था। मन और शरीर के बीच बेहतरीन सामंजस्य किसने स्थापित किया और पदक के हकदार बने, सुनते हैं नीतीश अरोड़ा से। The strong noise of metal sword striking strongly against the defender's shield, fetching point after point from the judges. Assam Vishal Chakrabarti and Raj Singh set the bar high in the very first match, fetching them 39.5 points in sword and shield discipline of Kalaripayat, winning a bronze. बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत मेहनत के मेडल के लिए बहुत मजा आ रहा है सर। 6 fights later, it was AM Aaron and Adinath from Delhi who raised the bar to 40.7 to win a silver. You raised the bar and the champions raised their game. Shaheen Shabu and Muhammad Sanan from Kerala did, and the score 43.8 admitted that high scores by earlier teams propelled them to put some extra effort. We saw their performance, so we triggered that we won the gold. The girls came out fighting with equal strength and ferocity with a sword in one hand and shield in the other. Gold number 6 for Kerala team, Fatimat Shad and Nivedya. Silver to Sridevi Srijit and Bhavya Bipin. Karnataka team Delhi, Shreya and Medha bronze medal. We tried our best. We didn't even miss a shot, but after seeing the performance of the Karnataka team, we felt that our team did better than them. The last event of Kalaripayat was high kick boys that finished the Kalaripayat event with Kerala sweeping maximum gold medals. हमला और बचाव दोनों ही अस्तित्व की नींव है। ये दर्शाता है तलवारबाजी का खेल, और राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसके साक्षी बने KD शुक्ला। फेंसिंग मुकाबलों के तीसरे दिन आज भी 2 स्वर्ण दांव पर लगे थे। लड़कियों के लिए एपी की व्यक्तिगत प्रतियोगिता में चंडीगढ़ की गुंजन और हरियाणा की पलक के बीच स्वर्ण के लिए मुकाबला हुआ और गुंजन ने बहुत ही आसानी से 15-5 से सोना हासिल किया। मैच से पहले सर ने तैयारी करवाई थी, तो जो भी तरह के मुझे सर नहीं करवाई है। थोड़ा सा लगता था पर निकाल लिया। कोच बैठे तो नहीं लगता कि हाँ नहीं निकलेगा, निकल जाता है। शंकर नारायणन ने शुरू से ही गुंजन के खेल में अच्छी संभावनाएं देखी हैं। When she started fencing at the time I saw her, she was very curious at that time. Still she is very curious to do what to do next.
शी इज लाइक वेरी पोटेंशियल गर्ल। वहीं पलक ने जो पहली बार गुंजन के सामने थी, अपने रजत पदक पर संतोष व्यक्त किया। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैं ये जो है मैं अपने पूरे कोच को देना चाहूंगी जिन्होंने मेरे को यहाँ तक पहुँचाने का श्रेय मिला है। मुझे लगता है कि मुझे अभी और तैयारी की जरूरत है ताकि मैं गोल्ड मेडल तक पहुँच सकूँ। अब मेरा सिल्वर आया तो मैं चाहती हूँ कि मेरा गोल्ड आना चाहिए था। लड़कों के सेबर के व्यक्तिगत मुकाबलों में तमिलनाडु के एवी अर्लिन और चंडीगढ़ के कुलराज पन्नव शर्मा आमने सामने थे। संघर्षपूर्ण चले मुकाबले में तमिलनाडु के एवी अर्लिन ने 15-9 से सोना हासिल किया। खेलो इंडिया यूथ गेम से सेकंड गोल्ड मेडल है। पिछले साल भी मेरा गोल्ड था इंडिविजुअल और इस साल भी गोल्ड था। कॉन्फिडेंट था कि मैं गोल्ड मारूंगा और मैंने मार दिया। मैं अभी बहुत खुश हूँ। कुलराज को रजत से ही संतोष करना पड़ा। अच्छी पेस में था स्टार्टिंग में, मैं बाद में मैंने लूज छूट गया मेरे से। उसके बाद अर्लिन ने बहुत बढ़िया कवर करा, उसने बहुत अच्छी तरीके से खेला। आगे हम भी अच्छे से ट्राई करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे और अच्छे से खेलेंगे। इससे पहले सेमीफाइनल मुकाबलों में लड़कों के सेबर इवेंट में तमिलनाडु और हरियाणा के बीच, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में चंडीगढ़ और हरियाणा के बीच मुकाबला था, किंतु दोनों ही सेमीफाइनल में हरियाणा के खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ सके और दोनों कांस्य हरियाणा को मिले। वहीं लड़कियों के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में हरियाणा ने चंडीगढ़ को, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में तेलंगाना ने हरियाणा को हराया और इस तरह हरियाणा और तेलंगाना को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिल्ली में जिम्नास्टिक्स में लचीलापन और संतुलन के सुंदरतम प्रदर्शन में किस टीम को कामयाबी मिली, सुनते हैं शाहिद आजमी की जुबानी। आज रिदमिक जिम्नास्टिक के फाइनल के साथ ही आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक के ऑलराउंड फाइनल भी खेले गए। रिदमिक इंडिविजुअल के चारों इवेंट, हुप, बॉल, क्लब्स और रिबन के फाइनल में महाराष्ट्र ने सभी स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। रिदमिक ऑलराउंड में गोल्ड मेडल जीतने वाली परीना राहुल ने आज हुप और रिबन में गोल्ड मेडल जीतकर अपनी हैट्रिक मुकम्मल की। परीना ने 3 गोल्ड और 2 सिल्वर समेत कुल 5 पदक जीते। परीना राहुल खेलो इंडिया में अपने प्रदर्शन को लेकर कहती हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। 5 मेडल जीत के, 3 गोल्ड और 2 सिल्वर जीते हैं मैंने आज। और मेरे को बस मेरे कोचेस को, सारे कोचेस को मेरे को थैंक यू बोलना है। पेरेंट्स जिन्होंने मेरे को, जिन्होंने अपना सारा टाइम, मनी और मेहनत मेरे पे डाली है। मेरे पापा जो मुझे छोड़ते थे प्रैक्टिस में, मम्मी जो छोड़ती थी, सब ने मेरे पे बहुत मेहनत डाला है, तो उसकी वजह से मैं यहाँ आ पाई हूँ। महाराष्ट्र की किमाया अमलेश बॉल इवेंट में स्वर्ण पदक अपने नाम करते हुए कहती हैं, मेरा जो रूटीन है कोरियोग्राफी, सो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस से मैंने परफॉर्म किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे गोल्ड मिला है। इसी तरह क्लब इवेंट का स्वर्ण पदक महाराष्ट्र की शुभाश्री ने अपने नाम करने के बाद कहा कि मुकाबले से पहले मैं बहुत घबराई हुई थी। मेरा क्लब्स का इवेंट स्टार्ट हो रहा था, तब मैं बहुत घबराई हुई थी, फिर भी मैंने खींच लिया सेट और मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैंने क्लब्स में गोल्ड मारा है। मुझे तो लग रहा था कि मैं नीचे आऊंगी, पर जब मैंने स्कोर देखा तो मैं पहले आ गई और परीना उसके बाद थी तो उसका स्कोर नीचे चला गया। दिल्ली की रायचल दीप ने हुप इवेंट में जहां सिल्वर मेडल जीता, वहीं बॉल और रिबन में ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया। सुनते हैं रायचल को। बहुत ही अच्छा लगा। मैंने कल से परफॉर्मेंस मेरी आज बहुत बेटर थी, मिस्टेक्स भी बहुत कम थे, तो मैं बहुत खुश हूँ आज की परफॉर्मेंस से मेरी। और आज जो रिजल्ट मिला वो भी मैं बहुत खुश हूँ कि मैं सिल्वर ले पाई, क्योंकि बहुत टक्कर का मुकाबला था और बहुत डिफिकल्ट था, तो आई एम वेरी हैप्पी विद एवरीथिंग आज। अब मिलते हैं हुप इवेंट में कांस्य पदक जीतने वाली देवांगी पवार से। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी फैमिली, मेरे कोचेस ने मुझे इधर तक आने के लिए बहुत सपोर्ट किया है और इससे ज़्यादा मेडल लाने की कोशिश करूंगी अगली बार। बात करते हैं आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक के ऑलराउंड इवेंट की, जहां ऑलराउंड महिला वर्ग का स्वर्ण पदक तेलंगाना की निशिका अग्रवाल ने जीता। रजत पदक महाराष्ट्र की अनुष्का पाटिल, जबकि कांस्य पदक सारा राहुल ने अपने नाम किया। सुनते हैं निशिका को। आज ऑलराउंड फाइनल था और ये मेरा तीसरा खेलो इंडिया है, तो इसमें आज ऑलराउंड फाइनल में मैं काफ़ी शुरू से ही कॉन्फिडेंट थी कि आज मैंने अपना बेस्ट देना है। तो 4 में से जो पहला इवेंट था वो अच्छा नहीं हुआ था, उसमें मेरा फॉल हो गया था। तो उसके बाद बाकी 3 इवेंट मैंने बहुत फोकस के साथ, बहुत कंसंट्रेशन के साथ किया। रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। इसी तरह बालक वर्ग का गोल्ड मेडल उत्तर प्रदेश के हर्षित ने जीता। सुनते हैं हर्षित को। अच्छा फील हो रहा है। मैंने पहले पे फॉल भी करा था, वहाँ पे बुरा लगा था, पर अब अच्छा लग रहा है कि हर बार मैंने हिट किया था अपना बेस्ट अपरेटस पे। स्मैशेस, प्लेसिंग्स, शॉट्स और शटल की आवाजों से गूंजता रहा भागलपुर का सैंडीज कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। बैडमिंटन में आंखों देखी सौभाग्य रथ से। बैडमिंटन बॉयज सिंगल्स फाइनल में आज मुकाबला था उत्तराखंड के खिलाड़ी अंश नेगी और निश्चल चंद के बीच। पहले सेट को अंश 21-10 से जीतने के बाद ऐसा लगा कि ये मुकाबला एक तरफा होगा, मगर निश्चल ने कमबैक किया और अपने शानदार प्रदर्शन से सबका दिल जीत लिया। आखिर में स्वर्ण पर कब्जा जमाया अंश ने। अंश नेगी काफी टफ रहा आज का फाइनल। मैं सोचा था स्टेट गेम में जीत जाऊंगा। पहला सेट काफी कंफर्टेबली जीता, पर सेकंड में उसने और
अच्छा। थर्ड मैंने बस मैं बहुत थक गया था पर मैं कामली अपने दिमाग में मैंने दूसरा गेम प्लान रखा था तो मैं उसको लेके खेलता रहा। निश्चल चांद। पहले सेट में मेरा स्ट्रोक्स जा नहीं रहा था अच्छे से, सेट तो हो गया था, सेकंड सेट में कोर्ट तो अच्छे स्ट्रोक्स खेले और सेकंड सेट जीता। थर्ड सेट में भी खेल तो ठीक रहा था, थोड़ा लास्ट में वो अच्छा खेले अंश भैया। गर्ल्स सिंगल्स फाइनल में छत्तीसगढ़ की तनु चंद्रा ने सीधे सेटों से दिल्ली की ऋषिका नेगी को शिकस्त दी। तनु। मेरे तो सब अच्छा आज था ही, मैंने पूरा खेला अपना, बट मुझे लगा ऋषिका और अच्छे से फाइट कर सकती थी। ऋषिका तो सोचा था अच्छा मैच होगा बट मैं नहीं अच्छा खेली तो स्ट्रेट सेट हार गई। फर्स्ट सेट अच्छा चला, सेकंड सेट में थोड़ा हो गया। गर्ल्स डबल्स फाइनल में उत्तराखंड की दो बहनें मनसा और गायत्री रावत तो पहले सेट में तमिलनाडु की अनन्या और अंजना की जोड़ी के खिलाफ हार के कगार पर थी, मगर मनसा और गायत्री ने इस चुनौती को सीधे सेटों से जीत लिया। जीत का राज हमारे साथ साझा करती गायत्री और मनसा। पहले सेट में पीछे चल रहे थे पर हमने एक दूसरे से बात करी और एक दूसरे को बोला कि कोई बात नहीं, अगर पीछे भी है तो हम कम बैक कर सकते हैं। सेकंड सेट में काफी हमारी लीड आ गई थी, हमें थोड़ा समझ आ गया था कि कैसे खेलना है उनके साथ। अनन्या और अंजना रजत से संतुष्ट नहीं दिखी। Ananya, Arun tried our best, but I couldn't push myself in the second set, so we lost the touch and they got the rhythm and they won the set. Anjana Manikaran. It was my game actually today, so we don't have luck today, I guess. बॉयज डबल्स का फाइनल था आंध्र और तमिलनाडु के बीच। पहला सेट तमिलनाडु के नाम रहा, मगर टीम आंध्र ने अपनी रणनीति बदली और 3 सेट की कड़ी मशक्कत के बाद जीत का परचम लहराया। आंध्र के चरण राम। पहला सेट थोड़ा मिस्टेक से हारे, दूसरा सेट के बाद मिस्टेक्स नहीं किया, हम पैशन से खेला इसलिए पॉइंट्स आ रहे। तमिलनाडु के विश्वजीत। It's quite hard for us, but actually we should have played a little bit better and we should have won, but it's a hard day, so we have lost the match. गया में चल रही है योगासन की प्रतियोगिताएं। संकल्प मिश्रा की ये रिपोर्ट। On the third day of Yogasana event here at IIM Bodh Gaya, the dominance of Maharashtra was once again challenged by teams like Rajasthan and Assam, where in boys artistic single event, Ritik Bishnoi of Rajasthan clinched a gold medal with an undisputable score margin. Rajdeep Dalal of West Bengal earned a silver and Maharashtra claimed both third and fourth position. Here's Ritik on his performance. अभी बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। नंबर 140 में से 135 नंबर आए, फर्स्ट पोजीशन आई है तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। मैं यही कोशिश करूंगा कि भारत देश को आगे भी गोल्ड मेडल लेके आऊं ओलंपिक में। In the girls single artistic final, it was a fierce battle between Assam and Maharashtra, where Assam's Spriha earned a gold and Maharashtra claimed both silver and bronze position. How did Assam's Spriha broke the spell of Maharashtra? मेरा भी एक सपना था कि एक रिकॉर्ड ब्रेक करूं, क्योंकि हर टाइम महाराष्ट्र ही गोल्ड लेके जाया करता था, मुझे वो चीज़ बीट करना था और क्योंकि फर्स्ट में हूँ बहुत अच्छा लग रहा है। ये 2 साल की मेहनत शायद काम आ रही है। The semi-final of boys traditional also took place, where 8 out of 16 athletes will fight the ultimate battle of glory tomorrow. फुटबॉल में ज्यादा डॉज कर किसने ज्यादा गोल दागे, जो चल रहे हैं यमुना भगत स्टेडियम और IOCL बरौनी बेगूसराय में। अपनी संपूर्ण रिपोर्ट के साथ संजय व्यास और खुर्शीद अहमद। बालिका वर्ग फुटबॉल का फाइनल बहुत बड़ा अवसर झारखंड टीम के लिए और उतना ही बड़ा अवसर तमिलनाडु टीम के लिए भी। फाइनल में पहुंची ये दोनों टीमें स्वर्ण पदक के लिए आज दोपहर बाद भिड़ी। दोनों ही टीमों की रक्षात्मक क्षमता अचूक रही। गोल के लिए दोनों ने मौके बनाए और गंवाए। इस तरह समय समाप्त होने तक कोई भी टीम गोल न कर सकी। परिणाम अब पेनल्टी शूटआउट के जरिए होना था। इसमें दोनों तरफ से गोलकीपर को छकाया गया और नतीजा 5-5। फिर अगले मिले अवसर में झारखंड की टीम निर्णायक गोल कर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बालिका वर्ग फुटबॉल की चैंपियन बन गई। ये परिश्रम और स्वेद से अर्जित सफलता थी, जिसमें खुशी थी तो खुशी के अतिरिक्त से आंसू भी थे। टीम ने अपना जश्न कुछ यूं व्यक्त किया। झारखंड टीम के कप्तान शिवानी। बहुत खुशी हो रहा है, हम पिछला साल थर्ड प्लेस हुए थे, इस बार उसका बदला चुका है हम लोग। बहुत खुशी हो रही है हमें। सपोर्टर को भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थोड़ा टेम्परेचर हाई होने की वजह से थोड़ा बॉडी अलाउ नहीं करता खेलने, बट हम लोग मैनेज किए उस खेले। तमिलनाडु की टीम रजत विजेता रही तो सेमीफाइनल से आगे न बढ़ पाने वाली टीमें हरियाणा और मणिपुर दोनों को कांस्य पदक मिला। राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हॉकी का आज आखिरी दिन था। स्वर्ण पर किसने गोल दागा, पूरी रिपोर्ट के साथ Temjin Tiba. This morning at the Khelo India Youth Games, both bronze medal matches in hockey wrapped up with exciting performances. In the girls' bronze medal match, Madhya Pradesh put on a dominating show against Haryana, securing a comfortable 3-0 victory and clinched the bronze medal. Meanwhile, the boys' bronze medal match saw a close and thrilling encounter where Punjab edged past Odisha with a 4-3 win. Team Punjab's captain lead from the front in what was a nail-biting finish to grab the bronze medal.
Later in the day, at 5 p.m., the much anticipated girls hockey final between Jharkhand, the consistent performers, and Odisha, the hockey powerhouse, began. Both the teams showcased exceptional defense, and the first half ended goalless. In the second half, Jharkhand's Sangeeta Kumari scored off a penalty corner in the third quarter, while Odisha's Shibani Lugun equalized in the fourth. The match ended in a 1-1 throw in regulation time. In the shootout, Odisha kept their nerves, scoring 3 goals to clinch the girls' hockey gold medal, adding another feather to their illustrious hockey legacy. Odisha's captain. हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग गोल्ड मेडल जीते हैं और ये ओडिशा का फर्स्ट खेलो इंडिया में गोल्ड मेडल है, तो हमें जीत के बहुत अच्छा लग रहा है। बिहार में चिलचिलाती गर्मी, धूप, लू, आंधी, बारिश के बीच बालक बालिकाओं में अद्भुत उत्साह और ऊर्जा देखने को मिला। पटना के ज्ञान भवन में कुश्ती प्रतियोगिता के आज तीसरे दिन किसने किसको पटखनी दी, बता रहे हैं धर्मेंद्र कुमार। कुश्ती के आज दूसरे दिन लड़कों के फ्री स्टाइल में 55 केजी, 65 केजी और 80 केजी का और ग्रीको रोमन में 71 और 51 केजी के कैटेगरी में, वहीं लड़कियों का 46 और 69 केजी कैटेगरी में इवेंट का आयोजन किया गया। क्वालिफाइंग राउंड के बाद क्वार्टर फाइनल मैच का आयोजन किया गया, जिसमें आज मेजबान बिहार ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 51 केजी के ग्रीको रोमन में बिहार के जहीर रजक ने राकेश सोलन, जो कि राजस्थान के, उन्हें 11-8 से पराजित कर सेमीफाइनल में जगह बनाई। बहुत अच्छा हमारी तैयारी है। हम कैमूर जिला क्लब आए, उसमें राजगीर से हम लोग कैंप करके आए हैं यहाँ पे खेलने के लिए। हम यहाँ से गोल्ड लेके जाए। वहीं शिवम कुमार बिहार ने 71 केजी के ग्रीको रोमन बाउट में मनु कुमार झारखंड को पराजित किया। लड़कियों का 46 केजी के बाउट में रूपा कुमारी, जो कि बिहार की हैं, नवजोत चोपड़ा पंजाब को 6-2 से पराजित कर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कराई। दूसरे सत्र में सेमीफाइनल इवेंट का आयोजन किया गया। 51 केजी के ग्रीको रोमन में कर्नाटक के अदगोड़े धर ने प्रांजल कंगूर दिल्ली को 9-4 से पराजित किया। आज मेरा कुछ सेमीफाइनल मैच हो रहा था। कल सुबह वेट कंट्रोल करके पढ़ने के लिए तैयारी करता हूँ। मेरा इच्छा है गोल्ड जीतने के लिए 100% एफर्ट लगा के जीतूंगा। 71 केजी के ग्रीको रोमन में विनीत हरियाणा ने केंचू, जो कि कर्नाटक के थे, उन्हें 7-2 से पराजित कर फाइनल में अपना स्थान बनाया। वहीं महाराष्ट्र के अभिमन्यु ने अंशप्रीत पंजाब को 4-2 से पराजित कर फाइनल में जगह बनाई। 55 केजी के फ्री स्टाइल में शाहिल हरियाणा ने सोहन महाराष्ट्र को 3-2 से पराजित कर फाइनल में जगह बनाया। वहीं चिराग दहिया, जो कि दिल्ली के हैं, राकेश कुमार राजस्थान को पराजित किया। लड़कियों के 69 केजी के फ्री स्टाइल में मनीषा, जो कि हरियाणा की हैं, प्रांजल विट को 10-0 से एक तरफा मुकाबले में पराजित कर फाइनल में जगह बनाया। फाइनल में अच्छा करना है, गोल्ड लेके आना है। गोल्ड के लिए सेमीफाइनल जीत के आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा गोल्ड आए। मेरा कैडेट नेशनल आएगा, मैं उसमें अपना 100% दूंगी, उसमें गोल्ड डालने की कोशिश करूंगी। और पलक यादव राजस्थान ने हे चौधरी गुजरात को 4-0 से पराजित किया। मैंने सेमीफाइनल बाउट जीती है और गोल्ड के लिए तैयारी सही चल रही है और इस बार गोल्ड आएगा पक्का। कल 14 मई को इन 7 कैटेगरी में फाइनल मैच का आयोजन किया जाएगा। भारोत्तोलन में आज किसने स्वर्णिम प्रदर्शन किया और स्वर्ण पदक अपने नाम किया, ब्यौरा दे रहे हैं राजीव रंजन तिवारी। वेट लिफ्टिंग में आज 5 स्वर्ण दांव पर लगे हुए थे। मुकाबलों की शुरुआत बालकों के 89 किलोग्राम वेट कैटेगरी से हुई, जिसमें काफी क्लोज मुकाबले देखने को मिले, जिसमें झारखंड के रोहन कुमार महतो ने कांस्य तो आंध्र प्रदेश के चेंचू वेंकटेश ने रजत पदक जीता। पर स्वर्ण पर कब्जा तेलंगाना के साई वर्धन ने जमाया, जिन्होंने कुल 275 किलोग्राम का वजन उठाया। स्वर्ण पदक विजेता साई वर्धन। थैंक यू, मैं बहुत हैप्पी हूँ गोल्ड मेडल के लिए और मैं गोल्ड मेडल के लिए डेडिकेट करता हूँ साई को और पापा कोच सर को, सबको। बालिकाओं के 79 किलोग्राम वेट कैटेगरी में भी काफी फाइट देखने को मिली, जिसमें तमिलनाडु की MA हसीना शिरीन ने कांस्य पदक जीता, तो रजत पदक महाराष्ट्र की ग्रीष्मा यतीन थरोट के नाम रहा। पर स्वर्ण उत्तर प्रदेश की कीर्ति के खाते में आया, जिन्होंने कुल 183 किलोग्राम का वजन उठाया। स्वर्ण जीतने के बाद कीर्ति: सर मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा पहला गोल्ड है ये नेशनल में। आगे अपकमिंग इंटरनेशनल मैं पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, मेडल लाना चाहती हूँ इंडिया की तरफ से। बालकों के 96 किलोग्राम वेट कैटेगरी में भी काफी रोमांचक मुकाबले देखने को मिले, जिसमें कांस्य पदक हरियाणा के आदित्य के नाम रहा, तो रजत पदक तमिलनाडु के चारू केश SB के नाम रहा। पर स्वर्ण राजस्थान के हरिओम शर्मा के नाम रहा, जिन्होंने कुल 271 किलोग्राम का वजन उठाया। स्वर्ण पदक विजेता हरिओम शर्मा। अभी कुछ फील नहीं हो रहा है, बिल्कुल ही ब्लैंक पड़ा है सर। बाकी प्रिपरेशन ये सारी बहुत टाइम से पहले से, ये मेरा फर्स्ट खेलो इंडिया है, ये अच्छा गया थोड़ा बहुत। बालिकाओं के 81 किलोग्राम वेट कैटेगरी में स्वर्ण पदक तमिलनाडु की के ओविया ने जीता, जिन्होंने कुल 176 किलोग्राम का वजन उठाया। वहीं कांस्य पदक आंध्र प्रदेश की अल्लू रेवती के नाम रहा, तो रजत पदक महाराष्ट्र की आनंदी विनोद सांगले ने अपने नाम की। स्वर्ण पदक से चूकने पर अपनी निराशा जाहिर करती आनंदी: बहुत बुरा लग रहा है, मैंने 180 किया था टोटल, था इसलिए अभी 175 हुआ, तो इसलिए बुरा लग रहा है, 1 किलो से गया। वहीं आज के अंतिम मुकाबले में यानी बालकों के 102 वेट कैटेगरी में 3 नेशनल रिकॉर्ड बने। स्नैच में नेशनल रिकॉर्ड R किशोर के नाम रहा, तो क्लीन एंड जर्क और टोटल
का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तुषार चौधरी के नाम रहा। उत्तर प्रदेश के तुषार चौधरी राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ साथ स्वर्ण पर भी कब्जा जमाए। तो वहीं तमिलनाडु के आर किशोर रजत पदक तो असम के चाणक्य बोरा कांस्य पदक जीते। पटना के आईएएस भवन में टेनिस में आज किसकी एस किस पर भारी पड़ी, बता रहे हैं एसबी वेंकटराम। Day 4 of the tennis competition witnessed all medal matches in the boys and girls singles and doubles event. Late evening in the doubles category of the girls gold medal match, Maharashtra pair of Akruti Narayan and Aishwarya Dayanand Jadhav outclassed the fancied pair from Telangana, Lakshmi Siri Dandu and Rishita Reddy 6-0, 6-4 to clinch the gold medal. As we were prepared and we played the same, it was so good, and thanks to Aishwarya, she also played very good, and we are very happy today we are the gold medalist for Maharashtra. In the boys doubles category gold medal match was an all Haryana affair. Arjun Rathi and Arjun Pandit defeated their compatriots Aditya Moore and Tavish Pahwa 6-2, 6-3. Arjun. It's always a great feeling after winning the match. We won the gold medal here, so it's a nice feeling with my partner. Earlier in the day, in the boys singles bronze medal match, Arno Vijay Paparkar of Maharashtra defeated Samarth Ujjwal Sahita of Gujarat 6-0, 5-2 to bag bronze medal, which happens to be the first medal of the tennis competition. Top seeded Arno was not all that contented, but was happy to go home with a bronze medal. My team was expecting to win the gold medal, but yeah, something is better than nothing. Yes, I mean they were like, okay, at least bring bronze, and I brought, so yeah, my whole team is happy. In the girls singles bronze medal fight, Lakshmi Siri Dandu of Telangana defeated Harshini Nagraj from Karnataka 6-4, 6-1. For Lakshmi, this was the second medal in the competition. First of all, I'm like a little nervous and sad because I missed my semis, but I'm still happy that I got bronze for my team. Earlier in the day, in the boys doubles bronze medal match, Arman Walia and Hitesh Chauhan of Punjab beat Pranil Sharma and Riyan Sharma from Delhi 6-4, 6-2 to grab the bronze medal. And in the girls category of the doubles contest, Nainika Narendra Reddy and Prisha Nikhil Shinde of Maharashtra beat Mahika Khanna and Shagun Kumar from Uttar Pradesh 6-2, 6-2 to bag the bronze medal. Tomorrow in the tennis competition, both in the boys and girls category, will witness gold medal matches. थांगता मैतेई पारंपरिक मार्शल आर्ट है और इस पर अपनी पैनी नजर रखी बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड गया में रमेश चंद्र ने। थांगता की ठुनाबा अनुश्रुबा प्रतियोगिता में बालकों के 56 किलोग्राम भार वर्ग में मणिपुर के टी श्रीनिवास सिंह, नागालैंड के मनीष रे, राजस्थान के राहुल यादव और मध्य प्रदेश के सत्यम डांगी ने सेमीफाइनल मुकाबलों के लिए क्वालिफाई किया। सत्यम डांगी मुकाबला टक्कर का भी है। उस खिलाड़ी से मैं पिछले बार हारा था, तो मैंने सोचा था इस बार हम और अच्छी तैयारी करेंगे, कुछ ना कुछ कमी है तो उसको पूरी करेंगे। इस बार मैंने अपनी कमी को पूरा किया और मुकाबला जीता। राहुल यादव। अगर इस खेल में अगर घुसी रहे हो तो डर तो बिल्कुल निकाल के खेलना पड़ता है। घर वालों ने बहुत सपोर्ट करा। वहीं 60 किलोग्राम भार वर्ग में बिहार के भूमिक राज, दिल्ली के गर्व, मणिपुर के परिहम्बा और पंजाब के हरमन सैनी ने सेमीफाइनल मुकाबलों के लिए क्वालिफाई किया। वहीं थांगता की ही फुनाबा अनुश्रुबा प्रतियोगिता में बालिकाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में असम की रेणुका देवी, बिहार की सुवाक्षी सरगम, त्रिपुरा की तान्या डे और मणिपुर की टी.एल. देवी ने क्वालिफाई किया। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बास्केटबॉल कोर्ट में कड़ी स्पर्धा देखने को मिली, जहां युवा प्रतिभाओं ने अपनी ड्रिबलिंग और डंकिंग से दर्शकों को चौंका दिया। विस्तृत रिपोर्ट के साथ अंशुमन झा। बिहार की टीम दोनों वर्गों में अपने मैच हारकर बाहर हो गई। सुबह का पहला मुकाबला बालक वर्ग का था। इस मैच में राजस्थान ने बिहार को 126-30 से पराजित किया। वहीं बिहार की बालिका टीम को केरल के हाथों 111-9 से हार मिली। इस हार के साथ ही बास्केटबॉल में बिहार की चुनौती समाप्त हो चुकी है। बालिका वर्ग में मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के बीच खेला गया मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। दोनों टीमों को अपनी पहली जीत की तलाश थी। अंतिम सेकंड तक चले इस मुकाबले को मध्य प्रदेश ने 76-73 से जीता। मध्य प्रदेश की कोच ने इस जीत पर कहा, नेट टू नेट फाइट हुआ, दोनों ही टीम अच्छी, लेकिन हमारे बच्चे लास्ट मोमेंट में अच्छा खेल गए। हालांकि ग्रुप ए से पहले ही हरियाणा और कर्नाटक की टीम ने और ग्रुप बी से पंजाब और महाराष्ट्र ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उधर बालक वर्ग में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच खेले गए पूल मैच में मध्य प्रदेश ने छत्तीसगढ़ को 80-60 से पराजित किया।
पहले और चौथे क्वार्टर में मध्य प्रदेश ने दमदार खेल दिखाया। मध्य प्रदेश के कोच ने जीत के साथ वापसी पर संतोष जताया और आयोजन प्रबंधन की प्रशंसा भी की। और हमारी गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग मध्य प्रदेश शासन अच्छा स्पोर्ट्स को अच्छा बढ़ावा दे रही है और हम लोग उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए, ये हमारे लिए बड़ा दुख का बात है। बास्केटबॉल में कल से सेमीफाइनल के मैच खेले जाएंगे। मुक्केबाजी प्रतियोगिता स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रेलवे पटना में चल रही है। सुनिए मनोज कुमार यादव की रिपोर्ट। In boxing arena, today was the penultimate day. All the semi-finals bout in both boys and girls were played across different weight categories. In girls bantamweight category semi-final, Nisha from Rajasthan defeated Shikha of Haryana 5-0 and reached the finals. After the bout, Nisha said, मुझे जीतने का बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं कल फाइनल है तो मैं चाहूंगी मैं गोल्ड लेके जाऊं। In the lightweight category, both Haryana girls were against each other. In the semi-final, Winnie defeated Eva and reached finals. After the win, Winnie said, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने अभी फाइनल में एंटर किया है। मेरी अभी नेक्स्ट बाउट अपोनेंट्स के साथ है तो मैं अच्छा अपना करूंगी कि मैं बाउट से अपना माइंड सेट करके स्मार्ट वर्क करूं। मैं अपनी बाउट मुझे गोल्ड जीतना है और मैं गोल्ड लेके ही रहूंगी। On the other hand, in ring number 1, where boys lightweight semi-finals were played between Delhi and Haryana, where Haryana beat Delhi in split decision 3-2. After the win, he spoke to the winner. I'm Ishwinder Moore. मेरी अभी फाइट थी दिल्ली के साथ, 3-2 से फाइट गई। बहुत अच्छी बाउट थी, बहुत बढ़िया तैयारी है। मैं चाहूंगा यहाँ से गोल्ड लेके जाऊं। In the light middleweight category, in the boys semi-final, Mizoram was against Himachal Pradesh. The result of this bout was in favor of Mizoram 3-2 in split decision. After the bout, we spoke to Mizoram player and he said, My name is Samuel Zadeng. This is my first time in Khelo India, so I am very happy to reach the finals. I will try my best to win the gold in the Khelo India. In the boys welterweight semi-final, MP beat Haryana through a split decision 3-2 to reach the finals. We spoke MP player after the bout and he said, मेरा नाम जसरीत मोर है, मैं मध्य प्रदेश स्टेट से हूँ। आज मेरी सेमीफाइनल बाउट हरियाणा के गौरव से थी, मैंने उसको 3-2 से हराया। अब मैं कल फाइनल में पहुँच गया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कल मेरी फाइनल है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि यहाँ से गोल्ड लेकर जाऊँ। Tomorrow is the final day of boxing competition in Khelo India Games. एथलेटिक्स की प्रतिस्पर्धाएं पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चल रही हैं। वहां की गतिविधियों पर तेज नजर रखी है सीमांता वर्मा ने। A total of 13 gold medals were at stake, and the first gold medal of the second day athletics event came from boys hammer throw. But all eyes were at the 100-meter boys and girls run event. Aditya Pisal from Maharashtra has earned the title of the fastest boy with a national record timing of the event 10.62. A jubilant Aditya spoke to Akashbani after the record-breaking run. I'm very happy because I get to know I am the fastest man under 18 of India all the time. So it's a very honor to me to represent my state at this level at Khelo India, where facilities are very good. While in 100-meter run in girls category, Prisha Misra from Haryana has become the fastest girl with a timing of 11.85, who couldn't believe her own achievement. I'm still in shock. It'll take like 5 minutes for me to even process this happened. My coach has just said, go out there, give your best. If you can, run sub 12, like 11.99. I can't believe I ran 11.89. My head is still shaking. I'm jubilant. Back to boys hammer throw, Ans from Rajasthan won the gold medal with a throw of 66.60 meter. Speaking to Akashbani, here is Ansh. ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे लिए। मेरा लास्ट स्कूल में मेडल था और अब खेलो इंडिया मेडल है। थोड़ा सा रह गया रिकॉर्ड से, अगली बार और कोशिश करूंगा रिकॉर्ड के लिए। In 400-meter run in girls category, it's Edwina Jason representing Tamil Nadu won the gold medal with a timing of 55.90. While in boys category of the event, the gold medal went to Kadir Khan of Uttar Pradesh. After the golden run, here is Kadir Khan. सर बहुत अच्छा लगा, आज पहली बार गोल्ड किया खेलो इंडिया में। अभी यूथ भी खेल के आया था एशिया में, सिल्वर मेडल लेके मिडले रिले में भागा। अपना आज बेस्ट किया मैंने, खुद का रिकॉर्ड कर बना के खुद तोड़ दिया आज। With lots of surprises and excitements, the track and field event will continue till tomorrow evening. चलते चलते पदक तालिका मोबिन अहमद खान के साथ। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पिछले संस्करण की तरह अभी तक महाराष्ट्र ने पदक तालिका में बढ़त बना रखी है। दूसरे स्थान पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला। राजस्थान कर्नाटक को पछाड़ दूसरे स्थान पर काबिज हो गया है। कल इसी समय इसी चैनल पर हम फिर मिलेंगे कल की रिपोर्ट के साथ। आलेख एवं स्वर राजश्री त्रिवेदी, प्रस्तुतकर्ता प्रवीण चंद। नमस्कार।
7वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार। अभी आप बिहार में आयोजित 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स पर रिपोर्ट सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी की केंद्रीय कवरेज टीम द्वारा प्रस्तुत किया गया। You just heard highlights of the 7th Khelo India Youth Games being held in Bihar. This program was presented by the Central Coverage Team of Akashvani.